Hello everyone, welcome back to EduTap. I hope you all guys are doing absolutely good. So today if you see the thumbnail and if you see the topic behind me, today we are trying to judge that whether the marathons which were conducted on YouTube by EduTap were they pass or fail. Mind you my friend, first disclaimer, over here we are not teaching anything new to you. Okay, कुछ नया ज्ञान हम नहीं बांटेंगे. Rather we will do an introspection that whether the faculties of EduTap have done a good job or a bad job. Okay. So, to take this particular session forward, I would like to call Gurkirat sir first. Now, sir, you were like on bang on in the last, I would say, 1 month. You have done a lot marathons, marathons, revision sessions, and whatnot. Multiple strategy sessions and whatnot, sir. You have literally done the best job, I think, related to current affair. नाउ सर फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द मेजर एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. आज हम लोग यूट्यूब पे क्यों आए बच्चों के सामने? सर मेन एसेंस ये है कि जैसे बच्चे मेहनत करते हैं वैसे हम लोग एज अ टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना. अगर उनका ऑब्जेक्टिव है हमें पास होना है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, तो क्या हम लोग उस अनएक्सपेक्टेशन लेवल को मीट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे. बिकॉज एनालिसिस जो हमने किया है, इज इट गुड और इज इट बैड. एंड सर लाइक आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट ओवर हियर फॉर एनीथिंग बोस्टिंग कि हम लोग हमारे कॉलर ऊपर करेंगे कि हम लोग आपको बताएंगे कि एडुटैप बहुत बढ़िया है. As students speaks a lot of good things regarding us. We have like multiple feedbacks on Telegram, on mail and multiple other things. And we know that students love us, sir. बट हम लोग आज कर क्या रहे हैं? मतलब आप हमें ये एक मतलब मेरे को आपको समझ में आया कि आप ये बोलना चाहते हो कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग उस एग्जाम में पास हुए या नहीं हुए जिसमें बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल. और दूसरी चीज़ ये भी ऐसा देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैं बोल दूं कि मैंने मैराथन्स करवाए वो सुपर हिट मैराथन्स हैं, मे भी नहीं यार होंगी, हमने भी गलतियां की होंगी. ऐसे तो नहीं कि हम भगवान और हमने बिल्कुल परफेक्ट थे. तो वही हम भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आपके साथ ही आज कि जो चीज़ हमने पढ़ाई तो कितनी परसेंट वो आपके काम आई, क्या चीज़ ऐसी हैं जो हमें इंप्रूव करनी पड़ेंगी एज अ टीचर एज वेल एज द फैकल्टीज ऑफ एडुटैप, ताकि हम आपकी और बेटर हेल्प कर सकें इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो. Cool, sir. Let me call one another faculty of EduTap. Devanshu, sir, please join me if you can. Devanshu, sir, as Gurkirat sir said, today we are testing ourselves that whether we are a good teacher or a bad teacher. We have done a lot. Do you agree on that point or not, sir? Definitely, sir. These long hours of the marathon sessions, I think it's not just us, but our students has also done a lot by bearing us those long sessions. So definitely, we have tried our best in order to provide all the content material and for the revision part specifically. तो हर एक important चीज़ उनको provide करना through that last minute revision. So we have really tried our best to keep up the trust of the students, that the trust that they have shown to over us. So definitely I think we have really tried a lot and the result will definitely tell. Surely. So result क्या रहा है? You will see it. And again, we are not over here to prove that we are the best and everything else. We are just trying to see that whether we have done good or bad. Okay? So कुछ 15 से 20 मिनट में आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस एजुटैप की मैराथन से आए and what not. Okay? And yes, a special mention to Kritika ma'am also, because she has done also a big amount of work related to RBI notifications. So again, sir, from my end, Gurkirat sir, Devanshu sir and Kritika ma'am, they were like totally bang on. YouTube खोलो, सबसे पहले इनकी वीडियो मिलती थी, ये मैराथन नहीं वो मैराथन and what not. Right, sir? And sir, are you proud of this effort? Like I am proud to be a part of EduTap. Are you a proud faculty of EduTap? डेफिनेटली सर, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ वो है जो हमने आपको बोला कि जो हमने शायद आपको फ्रीली अवेलेबल करवाई. ऑब्वियसली यार मैं नहीं ये बोल रहा कोर्स में कंटेंट और ज़्यादा मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो और बहुत चीज़ें मिल जाएंगी. एंड सेकंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस आल्सो ना, अभी हमारे पास पूरे क्वेश्चंस नहीं आए थे. आई थिंक हमारे पास शिफ्ट 1 के अराउंड 56-57 क्वेश्चंस थे और शिफ्ट 2 के 60 क्वेश्चंस थे. एंड यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, वी आर नॉट जस्ट हियर टू टॉक अबाउट ओनली शिफ्ट 1, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये होगा कि यार शिफ्ट 1 बता देंगे क्योंकि वो तो इजी आई थी, और शिफ्ट 2 में भाग जाएंगे कि भाई वो थोड़ा ना तुमने पढ़ाया है. तो नहीं यार, हम लोगों ने पूरा इंट्रोस्पेक्ट किया है कि अगर शिफ्ट 2 में भी किस लेवल तक हमने आपकी हेल्प की, और अगर आपने सीरियसली मैराथन्स या बूस्टर्स पढ़े हैं तो फिर आपको कितना आप यू कुड एक्सपेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन. Cool. So without wasting much of our time, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट इस वीडियो को देखो एंड डेफिनेटली यू विल कम टू नो कि एडुटैप में क्या वैल्यू है, एडुटैप में क्या कंटेंट है और एडुटैप के टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. गुरकिरत सर, ऑल ऑन यू. देवांशु सर इज ऑल्सो देयर टू असिस्ट यू सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल. So okay, so guys, now we both are here, Devanshu sir and me. Let's start with the first shift, that is shift 1 here. सबसे पहला क्वेश्चन, यूनिट बजट.
मोस्ट एंटिसिपेटेड थिंग इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं और दिवांशु बात करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे कि यार बजट से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, और हम दोनों ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लड़ भी पड़ते थे कि यार सर वो कह रहा था सर क्वेश्चन कम आएंगे, मगर नहीं यार मुझे लग रहा है बजट पे क्वेश्चन आएंगे। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे मैराथन में हमने बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या की थी, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेके आए थे। रीजन बिंग दैट क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2023 ओरिएंटेड बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। तो कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइनर हैं, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर हमने बजट का, मैंने जो महामैराथन सेशन आपके साथ लिया था, महामैराथन सेशन, इन द महामैराथन सेशन वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन ऑन यूनिट बजट, ठीक है, तो ये महामैराथन सेशन से आपका ये क्वेश्चन निकल जाता। देन लेट्स टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो था वो आरबीआई नोटिफिकेशन से था, बेसिकली आरबीआई नहीं सेबी के करंट अफेयर से क्वेश्चन से था। तो फाइनेंस करंट अफेयर क्वेश्चन में था, उसमें आपके जो फेवरेट मैम है कृतिका मैम, उन्होंने ये चीज आपको क्लियरली पढ़ाई हुई थी और बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। आई थिंक ये क्वेश्चन उन्होंने महामैराथन में भी आपके साथ डिस्कस किया था। बट एग्जैक्ट फिगर की बात करो तो शी सेड सर मैंने ये चीज जो एग्जैक्ट फिगर है ये पढ़ाई थी अपने मैराथन सेशंस के अंदर, फाइनेंस मैराथन के अंदर, ठीक है जी। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, आई थिंक यहाँ पे शायद अगर कृतिका मैम होती और दिवांश सर होते तो दोनों कह रहे होते कि नहीं मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है। तो ये होता यार, क्योंकि दोनों फैकल्टीज को पता था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि इसमें से कुछ ना छूटे, एटलीस्ट स्टूडेंट शुड गेट ऑल द थिंग्स। तो मैंने कृतिका मैम के स्निपेट्स यहाँ पे लगाए हैं, ऑब्वियसली दिवांशु सर ने भी ये चीज पढ़ाई। तो मैं चाहूंगा दिवांशु थोड़ा सा आप बताओ कि ये आपको क्या लगता है कि एंटिसिपेटेड था कुछ आएगा इसके ऊपर? डेफिनेटली सर, एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है जो आरबीआई खुद रिलीज करता है, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम, जो आरबीआई का खुद का एग्जाम है। तो ऐसे टॉपिक्स को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो कि खुद आरबीआई ही रिलीज कर रहा है, राइट। सो इसीलिए बी इट द आरबीआई नोटिफिकेशंस सेशन और इट इज द रिपोर्ट्स मैराथन सेशन, तो दोनों ही सेशंस के अंदर हमने इस क्वेश्चन को इन डिटेल कवर किया था। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ सर कि स्टूडेंट्स के लिए कि हम यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा रहे कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं कि वो कुछ ना कुछ मिलते जुलते थे, नो। बेसिकली यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं जो डायरेक्ट हमारे कंटेंट से, हमारे सेशन से आप आंसर कर सकते थे। सो बेसिकली ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर डेफिनेटली यहाँ हाईएस्ट वेटेज पूछा गया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर कौन से पैरामीटर का होता है। तो आप देख सकते हो कि राइट आंसर वाज बेसिकली हियर regarding the payment performance which is having the weightage of 45%. और देखो ये यहाँ पे भी ना क्लियर कट लिखा होता पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ 45%, ठीक है। अब यार यहाँ पे एक चीज और समझना, वी आर नॉट सीइंग कि जो क्वेश्चंस हमने पढ़ाए सिर्फ उन क्वेश्चंस में से पेपर आए, नहीं। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, कुछ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बेस से नहीं, पर वहां पे अगर आपने उनको बूस्टर के साथ कॉम्प्लीमेंट किया होगा तो वहां से आपको हेल्प होगी, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस साल एक चीज तो क्लियर कट आरबीआई ने बताया कि आरबीआई को इस साल फाइनेंस करंट अफेयर से बहुत ज्यादा लगाव था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कीम्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, तो नहीं आए थे यार। और आप नहीं, मैं खुद बहुत शौक था क्योंकि मुझे पहला कॉल ही आया कि सर आपने इतनी बड़े महामैराथन करवा दी और स्कीम से क्वेश्चन नहीं आए, आपने इतने ईएसआई क्वेश्चंस का ईएसआई क्वेश्चंस कम आए। बट यार ये आरबीआई है, एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड हमने आपको पहले भी बोला था। तो यहाँ पे ये काइंड ऑफ चीज थी कि इस बार बैंकिंग ओरिएंटेड और आरबीआई ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। सेम गोज विद बल्क डिपॉजिट्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जैक्ट चीज ये पढ़ाई हुई थी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक अगर आप क्वेश्चन मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे पता है दिवांशु सर ने बहुत एफर्ट लगाया था पैराग्राफ बड़े बड़े बनाने में कि सर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। खुद भी एग्जाम में गए थे और ये ना बड़ा मुस्कुरा के आए इस क्वेश्चन को देख के, कह रहे सर मुझे आंसर देख के क्वेश्चन नहीं याद आया, मुझे मेरी स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन याद आया जो मैंने बनाई थी इस क्वेश्चन के ऊपर। सो आई वांट के ये थोड़ा सा बताएं आपको इस चीज के ऊपर। So definitely this question was from one of our marathon session only, and you can see here कि अभिनव बिंद्रा के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन से ईयर के अंदर उन्होंने इस मेडल को जीता था। So यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे और हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को इंक्लूड भी किया अपने सेशंस के अंदर। बट इसके अलावा सो दैट कि आप हर एक तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें, तो हमने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी रखा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वन वर्ड आंसर है यहाँ पे। सो ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्या किया कि एक मिक्सचर आपको कराया कि जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। एंड सिमिलरली हियर यू कैन सी द राइट आंसर वाज बेसिकली गिवन to this part where we were required to identify the year. So it was the 2008 Beijing Olympics. So where basically he has won this particular gold medal, right? Yeah. So basically this is something that we were required to cover here. Sir, definitely this question looks very very like सोच समझ के बनाया, it looks very structured. Like इस क्वेश्चन बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? Like what is the effort to make the PPT for marathon? Can you comment on some that particular part? So definitely some hours of works, some hours of time went there in making the PPTs and also in order to selecting these questions कि क्या ये question expected है कि नहीं है। So काफी टाइम लगता है analyze करने में, previous year questions को देखने में और साथ साथ इन topics को identify करने में कि कहाँ से expected lines पर question आ सकता है।
कूल। और उसके लिए सर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी बहुत करते होगे, राइट? डेफिनेटली बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो पीवाईक्यू एनालिसिस है हमारा, दैट इज बेसिकली द सोर्स। एंड इवन आई वुड से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड से कि द पीवाईक्यू ज्यादा ब्रह्मास्त्र in order to prepare for any kind of exam. So similarly you can definitely use such kind of things. Cool sir. Please continue. Gurkira sir, please come back. So moving ahead here, तो आप देख सकते हैं कि there was one more question which was related to RBI, और जहां पर आप देख सकते हो कृतिका मैम ने काफी अच्छे से आपको इन डिटेल चीजों को कवर कराया है और आपकी रिवीजन भी अच्छी खासी होगी मैराथन सेशन से, राइट? सो वंस अगेन यू कैन सी हियर कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो मार्क रट वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ नेटो चीफ, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ही मार्क रट के ऊपर था। सो ही वॉज अर्लियर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स एंड दैट वॉज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। देखो देवांशु सर ने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा था, तो अगर आपने सेशंस देखे होंगे तो ऑब्वियसली जो मैं एक चीज बोलूंगा कि देवांशु सर ने जिस पे बहुत ज्यादा आपने बहुत तारीफ की थी उस चीज की, माइंड मैपिंग टेक्निक स्पेसिफिकली जीए में बहुत रेलिवेंट रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें रिलेट करती हैं। तो वहां पे सर ने ये पॉइंट आपको लिखा हुआ था, तो अगर आपने सेशन में देखा होगा वो पॉइंट्स नोट किए होंगे, क्योंकि यार देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं बट उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट थी जो आपको यहाँ पे नोट करनी थी। सो दैट इज दैट क्वेश्चन हियर। मूविंग फॉरवर्ड इफ आई टॉक अबाउट हियर, ठीक है, अगला क्वेश्चन था एआई पावर्ड इंश्योरेंस। तो वहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि एलिवेट ने था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने स्टार्ट किया था, तो एक काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगले यहाँ पर सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि गाइस अगर आपने मैराथन सेशन को नहीं देखा और डायरेक्टली अगर आप सिर्फ पीडीएफ भी देख लेते हैं अच्छे से तो डेफिनेटली यू वुड हैव स्कोर्ड वेल इन द एग्जाम, क्योंकि डायरेक्ट पीडीएफ से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन गाइस, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। यार यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ पे टर्म नहीं, ये नेम्स नहीं बताए, तो आप लिंक पे क्लिक कर लेना एंड यू विल सी द 5 मेंबर्स ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। मैंने बताया बिकॉज बांग्लादेश रिसेंट मेंबर बना था, तो वो चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। सर ये लिंक कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स को? सर ये देखो यहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया आपको, और अब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करना एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विद दिस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन था जी ग्लोबल टॉप 100 गाइस। अब यहाँ पे हमारे बूस्टर्स ने आपका हेल्प किया है ऑब्वियसली, क्योंकि हम टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हम हर चीज़ नहीं पढ़ा पा रहे थे यार मैराथन में, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। तो अगर आपने हमारा बूस्टर रेफर किया होगा तो बूस्टर में कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट नंबर 31 वाज गिवन हियर एंड आंसर इज गिवन हियर, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया था कि यहाँ पे ग्लोबल टॉप 100 में टॉप में इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया के 9 इंडियन पोर्ट्स जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है गाइस। प्रोसीडिंग फर्दर ऑन हियर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आपने मेरे मैराथन सेशन देखा होता तो ये भी मैंने महामैराथन सेशन के अंदर ही लिखा था कि 8 साल की टेन्योर होती है जो टर्म हमने पढ़ी थी, और 5 इयर्स का रिडेम्पशन होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप वहां से कर सकते थे, ठीक है गाइस। ऑब्वियसली यार इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा कि शिफ्ट 1 में क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं बात करूं। फिर गाइस ये क्वेश्चन आया था आपका एनपीएस के ऊपर, अर्ली कैश विड्रॉल्स के ऊपर। तो ये देखिए अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, मैंने जो एनपीएस स्कीम है उसके ऊपर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, बट मैंने एनपीएस को यही वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आप सर प्लीज प्रोसीड फर्दर करेंगे तो ये चीज हमने आपको, अगर आपने एनपीएस का बूस्टर देखा होगा ना यार, तो आई थिंक मैं स्निपेट आपको ऐड कर दूंगा इफ यू कैन गो बिहाइंड। एनपीएस का जो आप बूस्टर देखोगे, स्कीम स्टेप का बूस्टर, वहां पे ये लाइन गिवन था 3 इयर्स और 25% विड्रॉल। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे थी, ठीक है जी सर। सर बट आप मैराथॉन्स के साथ बूस्टर को क्यों काउंट कर रहे हो? सर द रीजन फॉर दैट, देखिए मैराथन्स में ऑब्वियसली क्या होता है, हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेके जाते हैं और हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस ज्यादा जल्दी से जल्दी हम बच्चों को रिवाइज करवाते हैं। बूस्टर्स ऑन द अदर हैंड क्या एक क्विक रिवीजन डॉक्यूमेंट है, तो दैट इज व्हाई वी से कि कॉम्प्लीमेंटिंग द बोथ थिंग इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए आप सिंपल चीज समझिए, मैंने यहाँ पे एनपीएस पढ़ाया, अब अगर आप मुझे बोलो कि ये 4 लाइनों में मैंने आपको पूरी एनपीएस पढ़ा दी, तो दैट वुड बी रॉन्ग ऑन माय पार्ट ना, कि मैं आपको बोलूं कि सिर्फ ये 4 लाइनों में से पेपर आता। तो इसीलिए हम बूस्टर्स को बोल रहे हैं कि बहुत नॉट डिटेल डॉक्यूमेंट यार। मैंने डिटेल में भी पढ़ाई होगी किसी यूट्यूब सेशन में, एनपीएस पक्का पढ़ाई है, शायद आई थिंक अप्रैल में पढ़ाई होगी, बट बूस्टर्स में इसलिए बोला क्योंकि वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमने बोला था कि उसको पक्का रिवाइज कीजिए। एंड प्लीज नोट दिस पॉइंट, मैराथॉन्स एंड बूस्टर आर एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल राइट? सर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में। हाँ जी, लास्ट मोमेंट में अगर आपको कोई रिवीजन टूल चाहिए होता तो बूस्टर आई थिंक जैसे कौशिक सर बोलते हैं ब्रह्मास्त्र है, राइट? बट आई होप आप उसे यूज करो, ओके? चलिए सर, नेक्स्ट लेट्स कीप इट मूविंग फॉरवर्ड एज फास्ट एज पॉसिबल। अबाउट ना गाइस पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन बिल। अब देखिए इस पे क्या है गाइस, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन बिल पे मैंने आपके साथ क्वेश्चन ईएसआई मैराथन में लाइन बनाई थी। अगर मैं बात करूं आपको ईएसआई करंट अफेयर्स में लाइन बनाई थी, बट ये लाइन मैंने एग्जैक्टली पढ़ाया कहाँ पर था, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जो हमने आपके साथ सेशन किया था जून का, ठीक है। सो दैट इज द थिंग फ्रॉम वेयर आई पिक दिस क्वेश्चन हियर।
लेट्स प्रोसीड फर्दर है। यूनिट बजट क्वेश्चन देखो, ट्रेड्स वाला क्वेश्चन, यूनिट बजट वाला जो सेशन लिया था, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आई वुड नॉट से मैं बहुत महान बन रहा हूँ गाइस, ओनली पॉइंट हियर इज दैट यूनिट बजट इस साल काफी इंपॉर्टेंट था, तो उससे क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ, चाहे मेरी किस्मत दीजिए, थोड़ा सा इजी सॉर्ट पे क्वेश्चंस आपकी आए हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक फर्दर ऑन ग्लोबल पीस इंडेक्स। दिवांशु सर ने पढ़ाया है, सो ही विल बी हियर, ठीक है जी। ग्लोबल पीस इंडेक्स के ऊपर, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में पूछा गया था कौन सा रीजन लीस्ट पीसफुल था, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर लीस्ट पीसफुल रीजन के बारे में बात की गई थी और कंट्री के बारे में। सो वी हैव कवर्ड हियर द रीजन एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो बेसिकली दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम मैराथन सेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो जब क्वेश्चन वाली स्लाइड पर आप जाएंगे, डेफिनेटली यू विल सी दैट देयर द नेम ऑफ द कंट्री हैज आल्सो बीन मेंशन्ड हियर, राइट। सो दिस वाज द राइट आंसर टू दिस पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एसआरओ फिनटेक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फिनटेक है, मेरी कृतिका मैम से बात हुई, उन्होंने बोला सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआरओ इस साल, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आई थिंक ये फ्रेमवर्क आया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम नेटवर्थ, और वो मैम कह रहे हैं कि मैंने सर मिनिमम नेटवर्थ जो है वो क्वेश्चन में ही पढ़ाया था। देखो मिनिमम नेटवर्थ मैम ने यहीं पे पूछी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इफ वी गो टू द क्वेश्चन हियर, ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पे बन जाएगा मिनिमम नेटवर्थ है यहाँ पे 2 करोड़ रुपीज हियर। मूविंग फर्दर ऑन गाइस, अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन फिर आरबीआई के ऊपर आया था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के ऊपर पूछा गया था कि यूपीआई की लिमिट एनहांस किया, ये भी मैम ने आपको अपने रिवीजन सेशन में, मैराथन सेशन में पढ़ाया था, ठीक है। एंड इवन अगर मैं बात करूं, इसको बूस्टर में भी कवर किया था, जो आरबीआई न्यूज टैब का बूस्टर था। तो यहाँ पे मैं बात करूं, इसका आंसर था 5 लाख रुपीज गाइस। फर्दर ऑन इफ आई टॉक अबाउट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, क्योंकि इसको मैं आई थिंक बेटर दिवांशु एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज ही वाज आल्सो इन द एग्जामिनेशन, कैसे यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल सकता है। सो अगर आपने हमारा मैराथन सेशन देखा था, तो वहां पर हमने काफी डिटेल में इस रिपोर्ट को कवर किया था अबाउट एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जहां पर बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स थी कि कौन सी कंट्री हमारी टॉप पे है, कौन सी कितने कंट्रीज को यहाँ पर इन्होंने असेस किया, दैट इज 180 कंट्रीज। तो इसी लाइंस पर हमारी 4 स्टेटमेंट थी, और अगर आपने इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखा और साथ ही साथ जो इसका फ्रेमवर्क है उसको देखा, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते थे, जो कि हमारे डायरेक्ट मैराथन सेशन से था, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सो वंस अगेन यू कैन सी डायरेक्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम के अंदर यही पूछा गया था दैट हाउ मेनी डेज इट हैज आदित्य L1 हैज टेकन, दैट इज 178 डेज। सो हम देख सकते हैं गाइस कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली हमारे सेशन से ही हैं, जो हमने मैराथन सेशंस लिए हैं। आई डोंट थिंक कि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। Sir, sorry to interrupt, sir, because that particular question जो आदित्य L1 था, can you please take it back? This is the exact question which has appeared in the exam, right? एग्जैक्टली। This is something which is something very rare, sir. But still, I applaud your effort for this question, because same question का exact आ जाना is like सोने पे सुहागा kind of thing. Please continue, sir. Sorry to interrupt. थैंक यू सर। सो डेफिनेटली गाइज, आई थिंक ये एक ट्रीट थी आप सभी के लिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है, बट आप देख सकते हो कि डेफिनेटली एसडीजी इंडिया इंडेक्स को हमने काफी अच्छे से डिटेल के अंदर कवर किया था, और डायरेक्टली यू कैन सी once again from the statement 1 only the question was been asked। 57 स्कोर इंडिया का 2018 के अंदर था, that was the question। so खाली पीडीएफ भी देख लेते तो तब भी आपकी बात बन जाती, ठीक है। Similarly, there are some other more important questions, like the question from the DEA fund is there. Then there is a question from the Union Cabinet, which was chaired by Prime Minister Narendra Modi. So guys, if I talk about this specific question, biodiversity beyond national, फिर भी मैं जो दिवांश सर ने पॉइंट बोला वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि इसको और क्या बोला जाता है, तो ये वही चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आपने पीडीएफ्स, ठीक है, पीडीएफ अच्छी तरह पढ़ी हो, महामैराथन में आप जुड़े हुए थे, तो महामैराथन में भी लास्ट 1 डेज पहले जो मैराथन ली थी उसमें से भी काफी चीजें आपकी यहाँ पे स्ट्राइक कर सकती थी, इफ आई से। आगे चले अगर मैं बात करूं गाइस, ठीक है, तो ये आई थिंक कृतिका मैम ने क्वेश्चन इसके ऊपर सेशन लिया था, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड आई थिंक गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है, तो ये भी मैम ने आपको पढ़ाई हुई ये चीजें। अगर मैं बात करूं दिस सीईओ वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आई थिंक दिवांश सर ने आपके साथ डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, कौन से बैंक से हैं, ठीक है, फर्स्ट फीमेल सीईओ थी। हम हमेशा बोलते हैं फर्स्ट न्यूज में से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वही चीज है आपके यहाँ पे, ये बेसिकली फर्स्ट फीमेल सीईओ थी ऑफ डीबीएस ग्रुप। तो क्वेश्चन शायद उन्होंने उस बेस पे आपको पूछा किस ग्रुप से थी, जो जनरली ये क्वेश्चन हमें 2022 में देखने को मिले थे, 23 में तो आई थिंक वो पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो चुका था, सरप्राइज वाज देयर। ओके, फर्दर गाइस इफ आई टॉक अबाउट हियर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट अगेन दिस ईयर, अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, तो ये भी मैम ने आपको पढ़ाया हुआ था। देन दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट कि देवांशु सर टू एक्सप्लेन कि स्पेनिश कार्लोस अल्काजार वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने आपकी हेल्प कैसे की। सो बेसिकली गाइज, हमने काफी ज्यादा डिस्कस किया था इस चीज को, कार्लोस अल्काराज को, क्योंकि इन्होंने विंबलडन जीता था। तो व्हेन वी वर कवरिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर कि विंबलडन उन्होंने जीता था, साथ साथ उन्होंने फ्रेंच ओपन को भी जीता था, राइट।
So let me tell you that US Open was won by Carlos Alcaraz in 2022. ठीक है, तो 2022 के अंदर वो किया था, बट यहाँ पर उन्होंने कौन सा टूर्नामेंट नहीं जीता, दैट इज द ऑस्ट्रेलिया ओपन. ठीक है, सो दैट वाज द राइट आंसर हियर. मूविंग अहेड हियर, तो आप देख सकते हो कि आरबीआई का फुली एक्सेसिबल रूट के अंदर व्हाट एग्जैक्टली आर द सिक्योरिटीज व्हिच हैव बीन exempted here, that is basically 14 year and 30 year. So these are one of the very easy question guys. The G20 शेरपा, आई थिंक आप सालों से पढ़ते आ रहे हैं, हम एक साल से पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल को, राइट? इस पे भी ना सर एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि G20 की लेबर मीटिंग्स हुई थी, G20 की बहुत मीटिंग हुई थी, G20 का आई थिंक एक डीपीए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, जिसमें अमिताभ कांत ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, वो शेरपा थे. तो शायद ये चीज अगर आपने पढ़ी होगी तो बूस्टर्स में आपको ये चीज मिल जाएगी. आई वुड नॉट से इट्स एन इजी क्वेश्चन, इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन गाइस. ठीक है, फर्दर ऑन इफ आई टॉक अबाउट हियर, अब देखो ये वाला क्वेश्चन यार, मैं आपको बात बताऊं, अब अगर आपने पढ़ा हुआ है यार, आपने बूस्टर अच्छी तरह पढ़ा है, तो देन वी कैन से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज ऑन एंड नॉट इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आई वुड कंसीडर इट एज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हियर, क्योंकि ये हमने आपको डीडीयू में बताया था, ये भी शायद हमारा एक लर्निंग था. ये लर्निंग नाबार्ड से आया, क्योंकि नाबार्ड इस तरह क्वेश्चन पूछता था, शायद उस लर्निंग में से अब आपका ये चीज आपको हेल्प कर दी होगी. तो ये वही कोई बच्चा निकाल पाएगा यार, अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. ठीक है, चलेगा. अगला क्वेश्चन था सर्टेन के ऊपर, तो ये भी आपका, अगर आपने हमारा बूस्टर पढ़ा हुआ है करंट टैप का, तो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन हियर. नाउ गाइस, दिस इज एग्जैक्टली फ्रॉम द शिफ्ट वन हियर. ऑब्वियसली शिफ्ट वन पे काफ़ी बच्चों के हमारे पास ईमेल्स भी आए थे, हमारे पास मैसेजेस भी आए थे कि सर शिफ्ट वन में पेपर इजियर नॉट पे था. तो आई थिंक वी हैव परफॉर्म्ड, मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन 56 ही हैं, अच्छा परफॉर्म किया. बट असल टेस्ट हमारा भी कहाँ पे होना था, वो था शिफ्ट टू में. तो लेट्स नाउ लुक टुवर्ड शिफ्ट. सर वेट अ मिनट, जब वीडियो बना ही रहे तो अच्छे से बना लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट वेदर वी आर अ गुड टीचर और नॉट. ओके, सो सर यहाँ पे 31 क्वेश्चंस हुए, राइट? जी एंड दीज 31 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस में से लिए? सर, लाइक यहाँ कितने पे क्वेश्चंस आपके पास 56 अवेलेबल थे? 56 56. तो 56 में से अगर देखा जाए तो नंबर इज वेरी वेरी ह्यूज. अगर अपनी स्ट्राइक रेट देखा जाए तो कुडोस टू योर एफर्ट सर. मान गया सर मैं तो. कॉन्ग्रेचुलेशन देवांशु सर एंड कृतिका मैम ऑल्सो. नाउ आपको लग रहा होगा कि हम लोग थोड़ा मजाक कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. सी, फॉर अ टीचर to get this much of strike rate, that is huge, and all these are free material, right sir? If I add the course question, like अगर हमारा जो पूरा paid courses है, they have conducted like almost like 50 live classes on a span of just 1 month. Okay, combined live classes. अगर मैं उसे यहाँ पे ऐड कर दूँ, this number will increase, right sir? So I am very happy कि हमारा performance अच्छा रहा, and according to this I will give you pass. बिकॉज ये तो अगर आप देखोगे सर तो सिर्फ फ्री है, राइट सर? नाउ लेट्स मूव टू शिफ्ट टू, बिकॉज शिफ्ट टू कंपैरेटिवली जो मैंने सुना है इन लोगों से वो थोड़ा टफ था. ओके, नहीं सर बिल्कुल, क्योंकि एक्टिंग हमें भी लग रहा है कि हमारा एक्चुअल टेस्ट शिफ्ट टू में ही हुआ है, क्योंकि शिफ्ट देखो यार, एक चीज़ ना मैं आपको बताऊं, अगर पेपर इजी नॉट पे होगा तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़े होगे, ऑब्वियसली अगर आपने अच्छी मेहनत किया तो वो इजी पेपर है, आपने अच्छा स्कोर किया होगा, दैट्स वन थिंग. पेपर डिफिकल्ट होगा तो देन कम्स द क्वेश्चनिंग कि यार कितना आपका सक्सेस रेट होगा. तो लेट्स नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द शिफ्ट टू ईयर, बिकॉज यहाँ पे बहुत 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 तगड़ा सरप्राइज हुआ था. पहला क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बोलोगे ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज नहीं था यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन था. 4 फोकस थीम्स कौन सी हैं? तो ये 4 फोकस थीम्स मैंने आपको बजट में भी पढ़ाई थी, ठीक है, क्विक रिवीजन बैच में भी पढ़ाई होंगी, और मैंने आई थिंक आपको सेशन में भी पढ़ाई है. देन क्वेश्चन कम्स ऑन पीआईडीएफ. अब देखो ये जो स्कीम था, अब जैसे शिफ्ट वन में बहुत चीज़ें हमने आपको मैराथन से करवाई, बट हमने एक सेशन लिया था, आई थिंक मैंने और दिवांश सर ने 10 घंटे का सेशन लिया था स्कीम्स के ऊपर, दैट इज नोन एज महा मैराथन, जो शायद हमने पहली बार एक चीज़ ट्राई की थी अपने एंड पे. तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पीआईडीएफ सिर्फ स्कीम के बारे में बताया था, बट ये इसको कॉम्प्लीमेंट अगर आप बूस्टर से करते तो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था दैट यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम देयर. आई वुड नॉट से इज एन इजी क्वेश्चन, बट बिकॉज आरबीआई की स्कीम है तो चांसेस ज्यादा है कि क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करिए, विनर माइंडसेट. तो ये गाइस आपके करंट टैप बूस्टर में कवर था. ठीक है जी, विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट? तो इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन, ये मैंने आपको ईएसए करंट अफेयर्स मैराथन में पढ़ाया हुआ था ये क्वेश्चन. ठीक है जी, 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग. अब देखो यहाँ पे ना, मैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंट्राडिक्शंस हो रही हैं. कई बच्चे बोल रहे हैं सर 42 पूछी गई थी, कुछ पूछ रहे 43 पूछी गई थी. देखिए अगर आप इस सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को पढ़ोगे, और इस लाइन से पहले एक लाइन क्या था कि 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में बना था, तो वो क्या बना था? हमारा कल्चरल हेरिटेज साइट. तो मैंने आपको दोनों चीजें पढ़ाई थी, आई थिंक होम हमने डिस्कस किया हुआ यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये अगर आपने स्टेटमेंट्स अच्छी तरह पढ़ी होंगी तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका निकल सकता है. देन आई टॉक अबाउट दी
IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपका ESI मैराथन में, ठीक है। IPF के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन शायद मुझे लग रहा है महामैराथन में भी हुआ होगा, बट जो कवरेज था एग्जैक्ट मैं बोलूंगा, मैंने उसी से कुछ दिन पहले ना आपका ESI करंट अफेयर्स का सेशन लिया था, तो उसमें एग्जैक्ट लाइन जो है, एग्जैक्ट कंट्रीज जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है जी। कमिंग फर्दर हियर गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये कवर होगा आपका फ्रॉम द रिपोर्ट्स बूस्टर हियर, ठीक है जी। Now, guys, this is one question again. I would say which of the following parameters have contributed in the value of digital payment index. तो यहाँ पे पहले सेट में DPI का क्वेश्चन इजी था, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा गया था, तो ये चीज कृतिका मैम ने आपको पढ़ाई थी इनके मैराथन सेशंस के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें फुल एक्सेसिबल रूट, गाइस ये मैं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है, बट द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पे अगर अब आपने यहाँ पे बूस्टर्स के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट किया होता जो FAR मैम ने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था क्या लिमिट होती है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी एलिजिबल लिविंग सीलिंग्स, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया गया था ब्रिक वर्क रेटिंग्स, ये भी कृतिका मैम ने आपके साथ डिस्कस किया था इन हर फाइनेंस सेशंस हियर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है गाइस आपका इंडियन ओशन समिट। अब देखो यार ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ जिसने बहुत अच्छे, एक होता है ना बच्चा जिसने वर्ड बाय वर्ड क्रैम किया बूस्टर, क्योंकि देखो यार हमने आपको बूस्टर्स प्रोवाइड किए हैं, आपको सारे याद नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा आपको बूस्टर वर्ड बाय वर्ड याद होगा, बट पॉइंट इज guys, point here is, if we just go back to the previous slide, the point here is that if you see here that this is not an easy question here, अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना तभी ही आप इस क्वेश्चन को कवर कर पाओगे, और मैं बोलूंगा सैल्यूट ऑन बच्चों जिन्होंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा होगा, नहीं तो अदरवाइज आई वुड से, मुझे पता है मैंने बूस्टर दिया भी होगा तो मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने ये लाइन नहीं पढ़ी होगी, बिकॉज इतना इन डेप्थ नहीं, याद भी नहीं रहता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। हाँ, अगर पढ़ा हुआ अच्छी तरह तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Coming to this is I can say this was a kind of an easier question, बाकी पूरा पेपर बहुत टफ था, बट कुछ इजी क्वेश्चन थे, तो ये काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जो हमने बहुत बार डिस्कस किया, इवन महामैराथन में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। Then if I talk about World Population Prospects Report, तो World Population Prospects Report में this is again a question that you can tackle from the statements that we have discussed with you, ठीक है जी। स्टेटमेंट से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। आगे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो CCPA के ऊपर देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम the prevention and the patterns 2023 prohibits. If I can ask Devanshu sir here to come, I think this was a question that was on report on currency and finance. तो report on currency and finance के ऊपर कृतिका ने बहुत डिटेल सेशन लिया था, तो I think sir this is from report on currency and finance. Definitely, sir. The report in currency finance has basically stated about the dark patterns which the RBI has observed. और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन था जो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली कृतिका मैम के सेशन से आप आंसर कर सकते थे। और गाइस वंस अगेन मैं आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि सिर्फ अगर PDF भी आप देख लेते ना कुछ क्वेश्चंस के, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप आई थिंक आंख बंद करके भी आंसर कर सकते थे, राइट? जी। कमिंग फर्दर गाइस, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना यार, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूं, जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वाला क्वेश्चन था, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मैम ने आपसे डिस्कस किया था। अब देखिए मैं बोलूंगा क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होता, पॉइंट क्या है कि मैम ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आपको समझाया था कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का काम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और अगर आपने इस चीज को समझा होगा, रट्टा नहीं मारा, समझा होगा, तो यू नो यहाँ पे पूछा गया था प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, जो कि उसका काम नहीं होता, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर, तो ये क्वेश्चन उस तरह से कवर होगा। देन गाइस फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके साथ मर्ज हुआ था, कुछ बच्चे बोल रहे इसका आंसर यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कुछ बोल रहे इसका आंसर नन ऑफ द अबव था क्योंकि स्मॉल फाइनेंस के ऑप्शन में नहीं था, बट मैम ने ये क्वेश्चन एज इट इज समझाया हुआ था अपने रिवीजन सेशंस में, ठीक है गाइस। फिर बात करते हैं जी अपना RBI गाइडलाइंस के ऊपर फिर क्वेश्चन आया था गाइस, तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक मैम ने अपने रिवीजन सेशन में कवर किया था, ठीक है। देन सम्मान कैपिटल लिमिटेड, अब देखो यहाँ पे GA सेशन जो मैंने या दिवांशु सर ने लिया, वहां पे ऑब्वियसली यार हमारे सेशन इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहे, हम लेट अस बी ऑनेस्ट हियर, स्कीम से बहुत कम क्वेश्चन आए, रिपोर्ट से क्वेश्चन आए, बट शायद वो रिपोर्ट्स जो जनरली हम लोगों ने मेजर्स पढ़ाई थी उनमें से शिफ्ट 1 क्लिक कर गया, शिफ्ट 2 नहीं इतना क्लिक किया होगा, तो ये अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आई थिंक मैंने आपको बहुत बार स्ट्रेस किया था इस चीज़ पे कि जब भी रीब्रांड किया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का तो उसको अच्छे से कवर करें, और ये क्वेश्चन वंस अगेन एक ट्रीट थी आप सभी के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी
एनबीएफसी ने अपना नाम चेंज किया टू समान कैपिटल, राइट आंसर वाज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस समान कैपिटल। तो इसके साथ दूसरा भी हमने कवर किया था जिसका नया नेम हमने पूछा था आपसे, बट यहाँ पर इससे आपका आंसर इजीली निकल सकता था, ठीक है। देन गाइस आई थिंक ये सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ये भी मैम ने पढ़ाया था अपने फाइनेंस रिवीजन सेशंस में, ठीक है, मैंने डिस्कस किया था अपने जो फाइनेंस के उन्होंने लास्ट मिनट सेशंस लिए थे, ठीक है गाइस। दैट वाज अगेन ऑन द क्वेश्चन ऑन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब देखिए ये पूछा गया था कौन सा पार्ट नहीं होता है, अगेन वही स्लाइड जो शिफ्ट 1 में काम आई, वही स्लाइड शायद आपकी शिफ्ट 2 में भी काम आ जाती, ठीक है। तो मतलब वही चीज उन्होंने घुमा के शिफ्ट 2 में भी पूछी है। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा जरूर हुआ है जो अगर मैं बात करूं, ठीक है। मूविंग फर्दर गाइस, इफ आई टॉक अबाउट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइस, लेट मी टेल यू दैट अगर आपने या तो मैराथन सेशन देख लिया होता आरबीआई न्यूज टैब का, या फिर रिपोर्ट्स टैब का, या फिर बूस्टर पढ़ा होता, तो डेफिनेटली आपके सारी जगह से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस सर अबाउट दीज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं बात करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर क्वेश्चंस हियर। दिस इज अबाउट इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, ठीक है। द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट, आई थिंक दिस इज अगेन दैट समथिंग दैट कृतिका मैम हैज डिस्कस्ड इन हर रिवीजन सेशंस विद यू गाइस, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक अगेन ऑन दी एचएफसीज हियर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इस पे क्वेश्चन आया था, दैट इज 1.5 टाइम्स विल बी द आंसर हियर। अब गाइस कमिंग टू दिस शिफ्ट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बी क्लियर है गाइस, इस शिफ्ट में आपके लिए नहीं हमारे लिए बहुत सरप्राइजेस थे। हमारे पास इस शिफ्ट में मैं बात करूँ तो हमारे पास अराउंड 60 क्वेश्चंस थे, बट वी डू नॉट, अगेन हमने यही बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे बूस्ट नहीं करने आ रहे, या हम लोग यहाँ पे ये नहीं बोलने आ रहे कि यार देखो आपने ये पढ़ा होगा तो देखो कितने आराम से क्वेश्चन कर देते, नहीं। लेट अस बी क्लियर गाइस, आपका शिफ्ट 2 बहुत डिफिकल्ट था, बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी उन क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ, अगर यार मैं बोलूँ 2-3 क्वेश्चन आसान थे तो शायद वो आसान थे, तो वो शायद अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा तो आपके वो क्वेश्चन निकले होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि मैंने पढ़ा है, आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से आपको क्लिक हुआ होगा। G7 समिट कहाँ पे होनी है वो भी आपने कहीं से पढ़ा तो आपका क्लिक हुआ होगा, बिकॉज एवरी इंस्टीट्यूट इज गुड। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज गाइस टू लेट अस फील कि हम किस लेवल तक आपकी हेल्प कर पाए। तो अगर मैं इन सेशंस की बात करूं, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो वहां पे हमारा क्लिक रेट शायद 31 क्वेश्चंस क्लिक हो गए थे 56-57 में से। अब यहाँ पे हमारे पास अराउंड 60 क्वेश्चंस थे और इसमें से 22 क्वेश्चंस क्लिक हुए हैं। बट अगेन यहाँ पे यार उन्हीं चीज़ों की बात की जा रही है जो हम आपके साथ फ्रीली लेके आए थे। दीज ऑल आर फ्रीली अवेलेबल मटेरियल्स, बिकॉज हम आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े थे यूट्यूब सेशंस के साथ, यूट्यूब रिविजन सेशंस, यूट्यूब मैराथन सेशंस, देन स्कीम्स बूस्टर, रिपोर्ट्स बूस्टर, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल्सो वॉन्ट टू फील कि जो चीज़ यार हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू और नॉट, है ना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इन सेशंस को लेने का कि जो चीज़ हम आपके साथ फ्रीली लेके आए हैं या जितनी मेहनत हमने की है, तो क्या उस मेहनत से कितना % हम आपको फ़ायदा दे सकते थे। अब बहुत बच्चे होंगे जो बोलेंगे सिर्फ 22 क्वेश्चन है 60 में से, तो यार देखो 20 क्वेश्चन अभी और हैं, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन इसमें भी बढ़ जाएं, उसके अराउंड 57-58 क्वेश्चन थे तो 15-20-22 क्वेश्चन उसमें भी बढ़े हैं, शायद हो सकता है 31 हमने आपके साथ क्लेम किया, शायद उसका भी रेट बढ़ जाए। और अभी एक चीज़ और है गाइज इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ हमने फ्री सेशंस की बात की, बट व्हाट अबाउट जो स्टूडेंट्स कोर्स के मेंबर थे, वहां पे हम कितना हेल्प कर पाए। तो उसके लिए वी आर वेटिंग, वी वांट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अगेन कंपाइलिंग द क्वेश्चंस हियर कि हमें पूरे 80 क्वेश्चंस मिले दोनों शिफ्ट्स के, और तब हम आपके साथ एक सेशन और लेंगे कि उन, अब अगर आप कोर्स के मेंबर भी थे और आप इनको कॉम्प्लीमेंट उसके साथ करोगे तो कितना हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। So this was all from our end. I think now I would like last comment from Devanshu sir also, because obviously यार जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ा के गया है उस सब ने बहुत मेहनत की है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी मेहनत किसी ना किसी लेवल पे तो आपको हेल्प करी गई होगी। डेफिनेटली सर, आई थिंक आफ्टर सीइंग दिस डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स ने हमारे मैराथन सेशंस देखे हैं और बूस्टर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कवर किया गया है, तो वंस अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस की हमने यहाँ पर बात की है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो पार्शियली कवर्ड था। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डायरेक्ट। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो हाँ पार्शियली कवर्ड थे हमारे इन फ्री सेशंस के अंदर भी, बट वी आर नॉट इंक्लूडिंग दोज क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली आई थिंक कि आप सभी को डेफिनेटली हमारे जो मैराथन सेशंस है बूस्टर डॉक्यूमेंट्स है पसंद आए होंगे, और द वे वी हैव कंडक्टेड दिस सेशंस। सो एक आखिरी रिक्वेस्ट आई थिंक सभी स्टूडेंट से है कि आप सभी ने डेफिनेटली इन सेशन को देख लिया है। सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील as per you whether we have passed or failed, whether the marathon sessions of EduTap and the booster document that we have provided to you, so we have passed through them or failed, so you can please let us know in the comment section. And guys on the last note obviously I would say guys, ऐसा नहीं कि हमारे लिए लर्निंग्स नहीं है, बहुत लर्निंग्स है हमारे लिए भी।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली नहीं आई, तो वो हम भी पूरा इंट्रोस्पेक्ट अभी फिर करेंगे कि यार कौन सी चीज़ ऐसे हैं, कैसे हम अपने सेशंस को अगेन रीप्लान करेंगे आपके लिए, चाहे वो फेज 2 की बात है, चाहे वो अपकमिंग एग्जाम्स की बात है। सो दैट द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर आप इस एग्ज़ाम से कुछ सीखे हो, जो गलतियां अगर शायद आपसे हुई होंगी तो कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी, वी एडमिट दोज मिस्टेक्स, मे बी समवेयर वी वेंट रॉन्ग, हमारा अप्रोच शायद इतना हेल्पफुल नहीं हुआ होगा, बट अगेन दिस अ लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरीवन। हमेशा बोला जाता है जितना सीख सकते हो उतना सीखते रहो। सो ऑन दैट नोट गाइज वी विल एंड दिस वीडियो एंड वी विल अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।